Insolvency, often a dreaded term for entrepreneurs and businessmen, is an unfortunate situation for which every business needs to be prepared for. Risk is a part of life for businesses as well as individuals, and no economy can thrive unless entrepreneurs risk their capital and efforts. For the growth of the economy, while it is important to have policies that promote startups, it is also critical to establish proper mechanisms for resolving insolvency or bankruptcy issues that often tend to get entangled in long drawn legal hassles. It was with this understanding that the Insolvency and Bankruptcy Code was introduced in India in 2016 to replace the Presidency Towns Insolvency Act of 1909. The mechanism for resolving insolvency matters in India has three main pillars: the insolvency regulator in the form of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, the adjudicators in the form of the National Company Law Tribunal, and the Debt Recovery Tribunal for individuals and partnerships. And last but not the least, the licensed professionals that handle the entire process for the insolvent or the debtor. The Insolvency and Bankruptcy Board of India is a unique institution as it regulates a profession as well as the processes, in the sense that it drafts both the rules as well as enforces them. It was designated as the authority under the company's Registered Values and Valuation Rules 2017 for regulation and development of the profession of valuers in the country. The board has regulatory oversight of the entire ecosystem of insolvency professionals, insolvency professional agencies, insolvency professional entities, and information utilities. The board was tasked to promote the development of and regulate the working and practices of insolvency professionals, insolvency professional agencies, as well as information utilities and other institutions, in furtherance of the purposes of the code. As a part of this exercise, the board has come up with a handbook for insolvency professionals. To tell us more about it, we are honored to have with us today Dr. Mukulita Vijayvargiya, who has joined us for this webinar. Uh, uh, we know that she needs no introduction to this to all the fellow professionals, but for the sake of the larger audience, already Mamtaji has introduced her. I will also like to inform you that Dr. Vijayvargiya is not only a home-time member of the Insolvency and Bankruptcy Board, but also the member of the Executive Committee of the International Association of Insolvency Regulators. She has over 40 years of professional experience in the legal field under various capacities as an advocate, academician, law officer, civil servant, and legislative draft person, and is a well-recognized doyen in this field. We are truly honored, Madam, to have you here for this session. And without much further ado, I would like to invite you for your address. And before that, I will just hand over the baton back to Mamtaji and request her to kindly conduct the proceedings and moderate the event. Thank you, Mamtaji, and thank you, everyone. Thank you, Rishabh. That was so nice of you to have. I think we got something new from you today about Mukulita ma'am. I was not aware she's the executive committee member of the regulators of that body. Ma'am, you are wearing quite a number of hats. It's a pleasure to know that. So Neeti, before we go to ma'am, would you like to say anything? And we also acknowledge the presence of Shri S.M. Gupta. He is the president of the NCLT Kolkata Bar Association. The NCLT Kolkata Bar Association has also joined in this program, and we are immensely happy about it. So thank you so much, Gupta ji. Neeti? Yes. Would you like to? Yeah. Thank you so much, ma'am. I will not stand between the audience and ma'am because I'm sure everybody is very excited to hear Mukulita ma'am. I'm reminded of a wonderful book I read long ago by Adam Smith, where he talks about, and that the prudent man is always sincere, and he feels horror at the very thought of exposing himself to the disgrace which he attends upon detention of his falsehood. And though this man is sincere, he's not always frank or open, and he does not tell anything but the truth. Now, what Adam Smith sort of described is about an ideal man who is sincere, and it's very shocking for most of the economist people who are from here, because we always think that morality and market does not go well, and here's a man who's supposed to be father of economics talking about morality and market. But I think Adam has genuinely experienced
every man is sincere. Situations and circumstances are differing, and it is important that this man, at least who's wearing a hat of insolvency professional, is more fearing. He may be God fearing, he may be fearing, he must have a fear from, whatever religion he believes in, but he has to be fearful. Fearful, why? Because as I understand, see, ethics is not is knowing the difference, that you have a right to do something, but also knowing what is right to do. And I firmly believe that ethics or integrity, it does not need any rules. It has no need of rules. It is something which is inbuilt. Now, over the time, because man has walked away from the ethical path, which is anyways as a human inbound to, walk, there had to be code of conduct to sort of reinsure and reinstate what a man is supposed to do. Now, in business, we all know that, ethics in business, many people have argued, doesn't go hand in hand. I'm very happy with and business was never seen as a good thing. Mr. Gupta is here. We have the vice president, sir, here. And business was never seen with the eyes of trust. But thanks to this current government, which is sort of given a new philosophy to the country, where he talks about that creation of wealth is not to be looked with a bad eyes. You can create wealth even with good ways. And where our honorable prime minister has talked about, creation of wealth, but he also talks about building trust in market. And the trust will be built in market only when we have ethical professionals in the market. Now, for the insolvency professionals, I can say that, with the IICA, we run this course called the Graduate Insolvency Program, where we try to hone the young IPs, the future. I mean, they're IPs from the day one that they pass the course, but of course, they need, guidance from and mentorship from existing IPs, and we ensure that they may lack in terms of professional experience, but the ethical and moral standards and consciousness should be there from day one. And I may share with all of you how we do it in the course. Firstly, what we do in our students, we take under 40 students across India from various cities, tier 1, tier 2, tier 3 cities. And what we train them is firstly by learning, by watching. What I mean is, I'm happy to share with you that Mukulita ma'am is sitting here and she has come and addressed her students. Mamta ma'am is here. She's an academic council member. And we have some very eminent members like Dr. Sahu on the advisory board. We have Dr. Simi Sharma, sir, a very noted IS officer and man known for his, ethical, standard of ethics and his commitment to his work. We have we have Scott Atkins, a very noted insolvency, profession. He's not an insolvency professional, but he's an insolvency practitioner from Australia. What we do in our course is we teach these kids learning by watching. They watch these great personalities and they aspire to be them. I can vouch that all my students in the class, they look at Mamta ma'am and they want to be her. So they want look at Mukulita ma'am and they say, we want to be as good and as ethical as Mukulita ma'am. So we train them by adopting learning by watching. Second thing what we do is, ma'am, learning by doing. Now here we find we adopt twofold approaches. Even because these are students, I call them because I'm a teacher, excuse me for addressing these young professional students, but these are all qualified chartered accountants, lawyers, CS professionals. And when they come and stay on campus, we encourage them to be truthful. We encourage them to speak truth and not to lie. So they are also learning by doing. Secondly, from the academic side, we present a lot of business situations which has a conflict, and then they have to identify the dilemma and make ethical choices. And what we always tell them, that ethical choice is a hard choice to make because it does not pay you in the short run, but what it pays you is in the very long run. So I'm going to stop here, ma'am, because when Mukulita ma'am is sitting here, it will be totally unfair for me to speak on a topic, which a ma'am is known for speaking. And Mamta ma'am, thank you so much for organizing this and also for guiding young insolvency professionals
which I think will be the torch bearer of insolvency ecosystem in future. Thank you so much, everyone, for having me here. And I hand the mic over to ma'am so that ma'am can invite Mukulita ma'am to take the discussion forward. Thank you, ma'am. Thank you. I mean, very rightly said, right to do something you must be having, but you also need to then know what is right. Perfectly said, Neeti. Thanks a ton for that. Gupta ji, with one requesting you to please invite Mukulita ma'am for giving her own words and pearls of wisdom. Please invite her. Thank you, Mamta. I'm honored, Rishabh Neetaji, and others who are attending in large numbers. So several members from our NCLT Kolkata Bar Association also are attending. I welcome everyone here, and we are honored to have Mukulita ma'am here, who has all the way from New Delhi, although virtually, but we are really grateful. Now kindly address us on this very new subject, very new booklet brought out by the IBBI, and we are all very excited to hear about the contents of the book. Although we know the principles and ethics, but we want to know about the contents of the book. So kindly enlighten us. Thank you very much. Please, ma'am. Yeah. Thank you. I thank Merchants Chamber of Commerce and Industry, NCLT Kolkata Bar Association, IICA, and I especially thank Mamta Binani for inviting me to this webinar, webinar on the ethics, code of conduct. I especially thank Mr. S.M. Gupta, who is the president of Calcutta, NCLT Calcutta Bar Association, Mr. Kothari of the Merchants Chamber of Commerce and Industry in Calcutta, Mr. Rishabh Kothari, Hiti from IICA, for having gracious presence, all having gracious presence this webinar. I thank all the participants और सभी participants का मैं हृदय से अभिनंदन करती हूँ, and especially on the occasion, सभी भाई बहनों का मेरा नमस्कार है, और especially on the occasion when India is celebrating 75th year of Republic Year of Independence. So I wish that इस साल हम ऐसी शुरुआत करें कि we revive our ancient glory of India, जहां पर प्राण जाए पर वचन न जाए. That was the motto. राजा राम का जीवन, it is full of code of conduct. और श्री राम का मंदिर बन रहा है, 75th ईयर मना रहे हैं, और होली का त्योहार, रंगों का त्योहार पास में है. ऐसे समय में ये आपने जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, मुझे लगता है कि ये वेबिनार इट इज सराउंडेड बाय द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और गुजिया खाना या और भी मिठाई खाना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोग, सभी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर अपने आप को ये माने. पहले जब मैं बात करती हूँ कोड ऑफ कंडक्ट की, तो पहले सभी प्रोफेशनल्स अपने आप को ये माने, दिस कंट्री बिलोंग्स टू मी, आई ओwe something to this country. If we are Indian citizen, as a citizen, what is my duty? You are professional next. First, you are citizen of this holy country. जहाँ राम और कृष्ण ने अवतार लिया, जहाँ ऋषि मुनियों ने अवतार लिया, जहाँ मनुस्मृति, रामायण, वाल्मीकि रामायण लिखी गई हो, वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट from morning to evening, all the activities of an Indian citizen is governed by code of conduct only. पूरे देश में हम देखेंगे कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल्स का स्पेशल है, चल कम लेटर ऑन, और पहले हम देखें एज ए सिटीजन हमारा कोड ऑफ कंडक्ट किया है टू प्रोटेक्ट, टू प्रमोट और फेलो सिटीजन्स, और फेलो मेंबर्स. अब क्या है, फेलो सिटीजन जो शब्द आया है, ये हमारा फेलो कम्युनिटी लिविंग से आया है. फेलो सिटीजन्स ये वेस्टर्न एक्सप्रेशन है, फेलो सिटीजन्स. हम किसी को ये नहीं कहते. विवेकानंद ने जब एड्रेस किया था शिकागो में, तो उन्होंने भाई बहन कहा था कि पूरी वसुधैव कुटुंब के प्रिंसिपल के आधार पर उन्होंने कहा था आप भी मेरे भाई बहन हो. या नहीं, भाई बहन के कजन है, जिसे हम चलते हैं, सभी मेरे कजन है, चाहे आपकी वो सिर्फ फूल पीढ़ी के लोग हैं, पर हम कहते हैं जी मेरे कजन है, थोड़ी दूर कर लेते हैं.
हम सभी नागरिकों को ये माने इसी धरती की पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। और जब ये मानेंगे तो फिर आप जब प्रोफेशन में आएंगे तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट, यदि बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट सिटीजन का आपके पास है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट को कंप्लाई करने के लिए। इसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। एंशिएंट इंडिया में धर्म क्या था? कोड बंडल, कोड ऑफ कंडक्ट, नथिंग एल्स। वही रूल ऑफ लॉ था, वही कोड ऑफ कंडक्ट था, हम उसको अलग नहीं करते थे। अभी आज के समय में वी हैव सेपरेटेड लॉ एंड रिलीजन। सब रिलीजन सेपरेट है, लॉ अलग है। ये सेपरेटेड लॉ एंड मॉरलिटी। और लॉ एंड मॉरलिटी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कहती हूँ मैं, लॉ विदाउट मॉरलिटी इज अ ट्री विदाउट रूट्स एंड मॉरलिटी विदाउट लॉ इज अ ट्री विदाउट फ्रूट्स। मॉरलिटी लॉ का इतना बड़ा कनेक्शन है कि बिना मॉरलिटी का, जिसको आप एथिक्स कहते हैं, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, और इसको भिन्न भिन्न युगों में भिन्न भिन्न नाम से पुकारा गया है। सतयुग में सत्य ही धर्म था आपका, सत्य बोलिए। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सबको पता है। यदि हम आते हैं त्रेता में तो वचन ही कर्तव्य और वचन का पालन करिए। आपने किसी को वचन दे दिया, व्हाटएवर हार्डशिप यू हैव टू सफर, यू हैव टू सफर, और वो एक आपका कोड ऑफ कंडक्ट था। जब द्वापर में आता है तो हम कर्मों की कुशलता या निष्काम कर्मयोग, जो कर्म की सबसे ऊंची पराकाष्ठा थी, निष्काम कर्मयोग। आप देखेंगे गीता में सभी के लिए कर्मों का विभाजन, कर्मों की कैटेगरीज, उसके अनुसार लोगों का डेजिग्नेशन, और उसके बाद में सबको क्या करना चाहिए उसके बारे में शायद अर्जुन को सुनाई गीता भगवान ने, लेकिन मैं कहूंगी इट अप्लाइज टू ऑल, टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रोफेशनल्स, सिटीजन्स, फैमिली मेंबर्स, सबको अप्लाई करता है। जरा उसको पढ़ के तो हम देखें थोड़ा सा, कितना पीस देता है। आई थिंक गांधी जी ने भी कहा था कि आई एम गाइडेड बाय गीता। जब भी कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे उसमें ही उसका हल मिलता है। क्यों हल मिलता है मैं बताती हूँ आपको। अभी जो हमारे कानून बनते हैं उसमें कौन सा प्रिंसिपल है जो कि पूरे कानूनों में की तरफ जाता है? वन इज रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो चल रहा है। दो चीजें, दो बातें ध्यान में रखना चाहिए हर लॉ मेकर को, वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड प्रोप्राइटी। कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, may not be proper, may not be feasible, may not be viable, may not be it is not that practical to be implemented। तो हम कहते हैं कि वो प्रोप्राइटी के टचस्टोन में फेल हो गया। and there are many laws which are constitutional but because they have failed, because they failed on the touchstone of the propriety. What is meant by propriety? Propriety includes public interest, propriety includes fairness, propriety includes reasonableness, propriety includes number of things। जो कानून में आप कैप्चर नहीं कर सकते हैं वो बाकी सब बचा हुआ प्रोप्राइटी में आ जाता है। and many times actions are judged because not of the constitution but because of the propriety की propriety कहता है कि ऐसा ठीक नहीं। यूनिवर्सल प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस, कि आप किसी को सुने बिना जजमेंट नहीं देंगे और सुनवाई का मौका देंगे। टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स which have been laid down by the courts in different judgments. There is no law for this, but they are universal. Why? In every country, by every court, by every agency, by every constitutional bodies, these are followed. You cannot affect adversely the rights of other person without giving a proper opportunity of being heard, which includes reasonable time of notice and proper opportunity to defend, including right to engage in advocate. You'll find that these are the principles which have governed, which have supplemented the law also. Law without morality, law without these principles is incomplete. Even there is no mention of universal principles of natural justice, still courts are bound to follow it. Positive authorities are bound to follow it. One cannot say there is no such provision. If there is no provision, in certain cases where the security of the country is involved or sovereignty of the country is involved, in that case, those principles can take a back seat. But it has to be provided later on. What happened in Menka Gandhi case, where passport was impounded, it was an emergency, but later on the post hearing was given. So hearing has to be given. और ये अभी तो हमारे इतने मुकदमे हैं और इतने तरह के मुकदमे, आई थिंक
जितने तरह की एक्टिविटीज हैं उतने ही तरह के मुकदमे हैं, उतने ही लॉज हैं, उतने ही मुकदमे हैं। और आपको याद दिला दूं मैं, एंशिएंट इंडिया में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि केवल 18 प्रकार के मुकदमे होते थे। आप सोचिए ना, हम मुकदमों का क्या हम डिस्प्यूट्स की वैरायटी कम नहीं कर सकते? व्हाट इज मेंट बाय इवोल्यूशन, व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन इवोल्यूशन? हम इवॉल्व होते आ रहे हैं। मीडियल पीरियड में जरूर हमारे कल्चर को बहुत बड़ा सेटबैक लगा, हम पीछे चले गए, हम स्टोन एज में चले गए, हो सकता है। लेकिन अब हमने 75 साल क्रॉस कर रहे हैं इंडिपेंडेंस के। नाउ वी आर फ्री कंट्री सिंस 75 ईयर सबसे चल रहा है हमारा। क्या हम इसको आगे नहीं ले जा सकते थे? क्या और दोबारा रिवाइव नहीं कर सकते थे कि हमारी डिस्प्यूट से संख्या कम हो जाए? क्या हम कोड ऑफ कंडक्ट हर सिटीजन का इस तरह नहीं हो सकते थे कि हम लोग विवाद कम करें? और केवल विवाद होता क्यों है? क्योंकि आपको राइट्स ग्रांट किए हैं। व्हेन you don't get rights, then certainly there is a dispute and you have to approach the court as per the law. लेकिन 18 तरह के मुकदमे होते थे सिर्फ पहले एंशिएंट इंडिया में, और उसके एक लिस्ट में गिनाना चाहती हूँ। ऋण लेना और देना, जिसे मैं कहती हूँ इट इज सिंस ह्यूमन सिविलाइजेशन। ऋण लेना और देना तो था ही, और ऋण लेने के बाद में ऋण को कौन चुकाएगा? नहीं चुकाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन चुकाएंगे, क्योंकि हमारा रीबर्थ हमारे देश का स्पिरिचुअल वो है कि आदमी फिर से जन्म लेगा तो आप नेक्स्ट जन्म में चुकाएंगे। देखिए, आप लाइबिलिटी डजंट एंड आफ्टर योर डेथ, बल्कि आप उसके बाद में आपका बेटा, आपके वारिस चुकाएंगे, वालिद चुकाएंगे। अब देखिए, उस वक्त लाइबिलिटी को, ऋण वाली लाइबिलिटी को वास्तव में इस तरह लिया गया था। इसका मतलब है कि ऋण वाली लाइबिलिटी को कितना जोर दिया गया कि वो नेक्स्ट जन्म में भी आपको चुकाना पड़ेगा। ऋण लेना देना, किसी के पास थाती रखना, बिना मालिक से पूछे किसी चीज को बेचना, जिसे हम थेफ्ट कहते हैं, साझे का व्यवहार, दी वस्तु को फिर ले लेना। आपने वस्तु दे दी, कन्यादान दे दिया, कन्या वापस ले ली, दी वस्तु को फिर ले लेना, वेतन न देना, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। की भी व्यवस्था से इनकार करना, यदि कोई सिस्टम है ले डाउन कर दिया है तो आप उसको इनकार करते हैं कि नहीं, हम इस व्यवस्था से नहीं चलेंगे। खरीद बिक्री में किसी बात पर अंतर पड़ जाना, स्वामी और सेवकों में विवाद। ये स्वामी और सेवा का कंसेप्ट बहुत पुराना है, जब से राजा हुए या जब से सृष्टि रची तब से स्वामी सेवक का इसलिए विवाद उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। सीमा की तकरार, कॉन्टिनेंट्स रहे ना, सीमा की तकरार होगी। गाली गलौज करना, मारपीट करना, चोरी, सास को साथ जबरदस्ती किसी चीज का लेना, पराये पुरुष के साथ स्त्री का संबंध, पति पत्नी के परस्पर, धर्म की व्यवस्था, पैतृक आदि धन का विभाग, जुआ, पशु पक्षियों को लड़ाना, ये सभी 18 कार्य से संबंधित विवाद ही मनुस्मृति में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। और उसी के लिए उन्होंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था कि राजा किस तरह से उनको निपटाएगा। ये मोर देन 1100 statutes on the central statute book, and I think maybe 50 times or 20 times state legislations. And everywhere you'll find that there is a code of conduct. Why I told you universal principles of natural justice, propriety, constitutionality, ये सब हैं। लेकिन हमारे insolvency and bankruptcy code, this is the first code which has laid down the foundation of new India economy, or I should say new India. And it is the first law. You will find that code of conduct is generally in the regulation by the regulators. Code of conduct छोटी चीज है, subordination है, क्या जरूरत है करने की? लेकिन I think IBB is lucky, IBB is fortunate that we find in section 208 functions and obligations of insolvency professionals. They are provided in section 25, 28, 18, 17. Number of sections are there. Yes, professionals, how they should behave, how they should conduct the process. Subsection 2 of section 208 says, every insolvency professional shall abide by the following code of conduct. Take reasonable care and diligence while performing these duties. You'll find that section 2082 states about professionals to follow the following code of conduct. Nowhere in any law it is mentioned like this. In the principal legislation, if you find a mention of such thing, that means the parliamentarians, the lawmakers, the BLRC committee all wanted that this process can be completed within the timeline stipulated here only if they follow the code of conduct. अब आप कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में आप देख, सेकंड पॉइंट है
to comply with all the requirements and terms and conditions specified in the bylaws of Insolvency Professional Agency. Here they have focused also that if Insolvency Professional Agency have in their bylaws prescribed certain code of conduct, you have to follow that also, not only of the IPPI, but of IPA also, to allow the Insolvency Professional Agency to inspect his records. This is the first thing. Where I think any professional agency should do it, to submit a copy of records of every proceeding before the authority to the boards as well as to the Insolvency Professional Agency, and to perform his functions such manner and subject such conditions may be specified. Such conditions are specified in regulations, and especially the code of conduct is specified in first schedule to the IP regulations. So this is the statutory provision which I have stated just now. Now let us look at the duties of professionals. Why we engage professionals? I will come to code of conduct later on. Why we engage professionals? Because they have domain knowledge, they have experience. But here, when the professionals were registered, they were not having any experience for the insolvency resolution. But I tell you, people tell that insolvency professional is a new profession, fine. It's a new code, fine. But it doesn't mean that there was no law, law was absent, or there was a vacuum in the country. No. There were laws. SURFACI was there, Debt Recovery Tribunal Act was there, Companies Act was there. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं था. Provincial Insolvency Act, President's Council Insolvency Act 1909 वो है आज भी. They have not been repealed. They are still there. हम जैसे कहते हैं ना कि कोई चला गया तो कुछ नहीं, कुछ होता है. कुछ नहीं तो कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ नहीं तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोप्राइटी होते हैं जिससे कि कंट्री गवर्न होती है और एक्टिविटी गवर्न होती है. यहाँ पर बेंजामिन कार्डोजो के वर्ड्स ऑफ विजडम थोड़ा सा I think those are relevant in the context of insolvency and bankruptcy code. He says, law needs to act far more quickly than it does. And you professionals need to act far more quickly than you are expected. For giving effect to new business institutions as they arise, he further says that it needs to do things in earnestly to satisfy business needs and business needs and work vigorously towards these ends. He says that whenever law is amended, it is the restatement of law. And in my view, insolvency code is also a restatement of law, but this law is not successful unless the professionals who are registered with the board authorized by the IPAs, they follow strictly the code of conduct. Now professionals are meant, why we engage professional for every event, birthday ho, शादी हो, छोटा सा फंक्शन हो, प्रोफेशनल्स को दिया आपने रिलैक्स हो. Why? क्यों? क्योंकि वो एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक प्रोटोकॉल है, एक एसओपी है. गवर्नमेंट में हम इसको बोलते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. उसको आप जब कर लेंगे तो देयर इज नो चांस ऑफ एनी नेग्लिजेंस और लैप्सेस. एक एसओपी आप ड्रॉ करते हैं कि तो पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये करेंगे. तो पंडित जी भी करते हैं कि पहले आप जल छिड़केंगे, फिर हमको चावल छिड़केंगे, फिर फूल लगाएंगे, फिर भगवान को भोग लगेंगे. तो देयर इज एसओपी. ये एसओपी ये अभी का जो हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आज का है. ये हमारे देश में हमारा कल्चर था, हमारी पूरी एसओपी थी, पूरी लाइफ, हमारा पूरे दिन की एक्टिविटी एक एसओपी थी. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था कैसे रहना चाहिए. जैसे मैं याद करती हूँ कि पहले क्या था. तुलसीदास जी कहते हैं हमारा दिन सुबह उठ के होता तो क्या करना चाहिए हमें. तुलसीदास जी कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता. ये पहली एसओपी, पहला एक कंडक्ट हुआ. क्या कर सकते हैं कि जिसके आप पांव छुएंगे, माथा शीश झुकाएंगे, क्या आप उनसे बहस कर सकते हैं? क्या उनका डिसओबी कर सकते हैं? आप चाहेंगे कि उनने जो इच्छा प्रकट की उसे पूरा किया जाए, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं. मतलब एक ट्रस्ट, किसी में ट्रस्ट रिपोज करें. उसके पहले जो उस व्यक्ति का माथा नवा रहे हैं, शीश नवा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आपसे उम्र में बड़े हैं, वो एक्सपीरियंस्ड है, और वो आपके माता पिता, वो आपके भगवान है. इसी प्रकार से जब हम प्रोफेशनल्स में एंगेज करते हैं, सो स्टेक होल्डर्स नीड टू ट्रस्ट द प्रोफेशनल.
ये नहीं है कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, मैं दूसरा देखता हूँ भाई, पता नहीं क्या करेगा, फीस तो बहुत मांग रहा है, पता नहीं क्या करेगा। पर हम सोचते हैं यार फीस ज्यादा दे रहे हैं तो काम अच्छा करेगा, कभी कभी हम ये भी सोचते हैं। प्रोफेशनल्स एंड पंडित्स, देखिए आप, प्रोफेशनल और प्रोफेसर वेस्टर्न कंट्रीज में बोथ आर हाईली रिगार्ड। हमारे यहाँ प्रोफेसर एंड पंडित और आप प्रोफेशनल्स भी है, क्योंकि रेगुलेटरी रिजीम जब से आया है तब से आप देखेंगे प्रोफेशनल्स की झड़ी लग गई है और हर फील्ड में प्रोफेशनल है। और इंश्योरेंस बैंकरप्सी कोड में तो प्रोफेशनल देखिए आप कौन है। इंश्योरेंस प्रोफेशनल खाली प्रोफेशनल नहीं है, इंश्योरेंस प्रोफेशनल ही एक्ट्स एज अ प्रोफेशनल आईआरपी, आरपी, लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर फॉर आरबीआई, देन वॉलंटरी लिक्विडेटर भी होता है वो उसमें। और कभी कोई जब विड्रॉल करता है तो वो काउंसिलर है, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा बन जाता है कि वो विड्रॉ करा के आपको वापस दे देता है। आप देखेंगे उसके बाद में हमारे वैल्यूअर्स हैं, उसमें भी एक पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना। और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हमें हमेशा ग्लोबलाइज वर्ल्ड में जब रहना होता है तो नेचुरली we have to follow international standards and we expect professionals to follow, comply with the code of conduct कि बाहर की पार्टीज, बाहर के लोग प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंसी में बाहर की इंडस्ट्री आप पे ट्रस्ट करे। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हमारे देश के कोड ऑफ कंडक्ट से क्रेडिबिलिटी आती है, प्रोसेस हो या प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, पूरा कोड जो हमारा कोड है इंसॉल्वेंसी, एक्चुअली मैं कह सकती हूँ इट इज फुल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोसेस में क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप दिया है। आईबीबीआई ने उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया है ताकि आप भटके ना इधर उधर, आप चलते रहे उस राह पर कि जहां पर कहा जाए कि यहाँ से मुड़ना है तो वहां मुड़ जाइए। और जब मुड़ेंगे तो आपको 90% से ही मुड़ना है, विड्रॉ करना है, उसके पहले आप नहीं मुड़ेंगे और करेंगे तो फिर आप छोड़ देंगे कि लिक्विडेशन में जाएंगे। तो आप देखिए कि फुल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा प्रोफेशनल्स यहाँ इसको फॉलो करना है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट लॉ इन द कंट्री where we have provision for the code of conduct, or I'm happy that our professionals, I think more than 3,000 in number, they have crossed, but I think the number of authorization has reduced anyway, but they need to follow the code of conduct. इस अवसर पे मैं गीता के कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम को कोट करना चाहूंगी। गीता में दो बातें कही गई, अलग अलग अध्यायों में कही गई है। पहला अध्याय है, तीसरा अध्याय, वो बहुत जनरल है। उसमें कहा गया है, हाँ, उसमें कहा गया है अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपना धर्म मतलब आपके प्रोफेशन का धर्म। वो कहते हैं भगवान, श्लोक नंबर 35 अध्याय 3, श्रेयान सधर्मो विगुण, श्रेयान सधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुतिष्ठता, स्वधर्मे है निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे के धर्म से डर लगेगा, अब अपना धर्म निभाइए, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। लेकिन इसके आगे चतुर्थ अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, और आई थिंक आई हैव रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट द प्रोफेशनल्स कैरेक्टर कि व्हाट इज प्रोफेशनल कैरेक्टर, क्या होता है। और उन्होंने, लॉर्ड कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने कहा है, बहुत अच्छी बात कही है। आई थिंक इट अप्लाइज टू ऑल द प्रोफेशनल्स, ऑल द इंसान प्रोफेशनल्स इन लेटर एंड स्पिरिट। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। जब भी कोई प्रोफेशनल काम करता है, इंसान प्रोफेशनल को, तीनों को, अकर्म, कर्म और विकर्म, क्या नहीं हुआ है भी जानिए, क्यों हुआ ऐसा, क्या करना है वो भी जानिए कि मुझे अब क्या करना है। विकर्म, व्हाट इज द बेस्ट, कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। इन दोनों का स्वरूप जानना चाहिए। अब स्वरूप जानने के बाद में क्या करेंगे आप, फिर से भगवान कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्य कर्म च या पश्चेद कर्मणि च कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्य स युक्त कर्म करता। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और विकर्म में और अकर्म में कर्म देखता है,
कर्म या अकर्म, आपके जो डीड्स हैं, जो आपने एक्शन लिया उसमें आप फॉल्ट लिखिए ना, व्हाट इज द फॉल्ट, एंड दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस प्रोफेशनल। यू फाइंड फॉल्ट वेयर, कहाँ रॉन्ग हुआ है, कौन सी बैलेंस शीट में कहाँ पर रॉन्ग हुआ है, कहाँ अवेयरनेस ट्रांजेक्शन हुए हैं, कहाँ गलती हुई है सीडी की। कर्म या अकर्म देखिए, और अकर्म में कर्म देखना। यदि गलती भी हुई तो फाइंड पोटेंशियल इन दैट, कैन यू रिवाइव इट, कैन यू रिजॉल्व इट। ऐसा नहीं है कि कुछ गलती हुई तो उसे ठीक नहीं कर सकते। दुनिया में ऐसी कोई गलती नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। इसलिए वो देखे कि इसमें जो भी बैलेंस शीट है, जो भी एसेट्स है, क्या उसको मैं गोइंग कंसर्न बना सकता हूँ। तो उस अकर्म में कर्म देखे, उससे एक पोटेंशियल देखे, उसमें एक पॉसिबिलिटी देखे, एक प्रोबेबिलिटी देखे कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसको रिवाइव कर। फिर भगवान कृष्ण 10वें अध्याय में भी बड़ा अच्छे से एक चीज कहते हैं जो हर प्रोफेशनल को देखनी चाहिए। उन्होंने कहा है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। शास्त्र विधि मीन्स हमारा कोड ऑफ कंडक्ट, हमारा इंश्योरेंस कोड, हमारा फर्स्ट शेड्यूल रेगुलेशंस का, हमारे सीआरपी आईपी रेगुलेशंस, ये हमारे शास्त्र विधि, ये शास्त्र विधि प्रोफेशनल्स के लिए शास्त्र विधि यही है। जो पुरुष शास्त्र विधि त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है। ही कांट अचीव द गोल। वो गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। यदि कर भी लेगा तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि उसने ठीक काम, क्योंकि पीपल विल चैलेंज इट। तो आपने गोल अचीव भी कर लिया, ठीक है, रिजोल्यूशन भी हो गया है, हो सकता है और भी कुछ हो गया है, लेकिन प्रश्न आएगा कि वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट, और शायद आपका रिजोल्यूशन फेल हो जाएगा, आपका रिजोल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा एनसीएलटी में जाके, देन यू वोंट फाइंड एनी जस्टिफिकेशन, बिकॉज आपने शास्त्र विधि जो विधि यहाँ बताई है उसका पालन नहीं किया है, इसे जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगा, और आप वो क्रेडिबिलिटी अटेंड नहीं कर पाएंगे एज ए प्रोफेशनल, और प्रोसेस को भी क्रेडिबिलिटी नहीं दे पाएंगे। फिर एक और जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप दूसरों से जलन मत करिए। प्रोफेशनल का मतलब होता है वो किसी से जलन नहीं करे, और वो 10वें अध्याय में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं प्रोफेशनल्स के। आई थिंक टुडे मैंने आपको प्रोफेशनल्स के बारे में गीता में कहाँ बता दिया गया है। उन्होंने कहा है कि दूसरों से आप बिल्कुल भी जेलस नहीं करेंगे। I am not able to find it right now. बट उन्होंने कहा है कि बुद्धिमान पुरुष कभी भी दूसरे जो पुरुष है उससे कभी जेलस का भाव नहीं रखेंगे। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन रखें आप, पर फेयर कंपटीशन रखें। आप देखेंगे कि गीता में भी प्रोफेशनल्स के लिए कहा गया है कि कौन बुद्धिमान है, और मैं सोचती हूँ कि जितने हमारे प्रोफेशनल्स हैं, इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स, और उनके बारे में किताब निकाली गई है, हैंडबुक ऑन एथिक्स फॉर इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स। इट्स अ वेरी गुड गाइड, एंड आई फाइंड दैट इट हैज इन इट्स कंटेंट, आई मीन कंटेंट में आप देखेंगे कि यूके का भी दिया हुआ है, दूसरी कंट्रीज का भी दिया हुआ है, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताई गई हैं। जस्ट लाइक एक्सपेक्टेशन है मेरी हमारे इंडियन प्रोफेशनल से, हमारे इंडियन प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन है मेरी, अभी तक हम जब भी कुछ कानून बनाते हैं तो क्या करते हैं, डाउनलोड, दूसरे कानून है ना वहां पर दूसरी कंट्रीज है उसको डाउनलोड करना। क्यों नहीं दूसरे देश के लोग हमें डाउनलोड, क्यों नहीं दूसरे देश के लोग हमारे कोड ऑफ कंडक्ट को इतना ऊंचा रख पाए कि हमारा इंडिया सिरमौर बन जाए। क्यों नहीं WTO के एग्रीमेंट्स में हमारे ही पैरामीटर्स चले। क्यों नहीं वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट देते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, वहां पे सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया क्यों है? कौन से क्राइटेरिया? परसेंटेज ऑफ रिकवरी एंड टाइमलाइंस। वो 2 ही क्यों है? क्या उसमें तीसरा क्राइटेरिया हो नहीं सकता? ईज ऑफ लिविंग। कोई भी कानून जो बनता है, इकोनॉमिक लॉज जो बनते हैं, वो दैट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, फाइन, बट इकोनॉमिक ग्रोथ से यदि सोशल इंपैक्ट ठीक नहीं आता है, सोसाइटी
बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है, बहुत हैरेस्ड है, बहुत महंगाई हो, तो क्या ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के जो सपने, जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रियम्बल में, क्या हम उसको पूरा कर पाएंगे? क्या कंट्री को हम इंडिपेंडेंट इंडिया रख पाएंगे? क्या कंट्री को दोबारा हम ईस्ट इंडिया कंपनी के, तीसरी कंपनी जो दूसरे नाम से जानी जाए, क्या वो नहीं आ जाएगी यहाँ पर? क्या इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म नहीं आ जाएगा? इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म इसलिए आया था क्योंकि हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भूल चुके थे। कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री का मुट्ठी भर लोग राज नहीं कर सकते जब तक कि यदि हम अपने कोड ऑफ कंडक्ट को बहुत स्ट्रांगली, हमारे सिटीजनशिप को, अब मैं थोड़ी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल है ना, तो उसकी कंपनी होती है, वो सीईओ बन जाता है, अपॉइंट हो जाता है, ही इज सीईओ ऑफ दैट कंपनी, ना तो उसने कोई प्रमोटर डायरेक्टर भी नहीं रहा, ना कोई मेहनत की, ना प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ना लोन सैंक्शन कराने में कोई दौड़ भाग की। कैसे आप लोगों को कितना अच्छा मौका है, किसी भी प्रोफेशनल को ऐसा मौका नहीं मिलता है कि आप 6 महीने तक या 330 मैक्सिमम टाइम तक आप उस कंपनी के सीईओ बने बैठे हैं। और सीईओ कैसे बने बैठे हैं? आप मैनेज भी कर रहे हैं कंपनी को, चला भी रहे हैं, गोइंग कंसर्न भी विदाउट एनी मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। लुक एट द सिचुएशन, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज नहीं है आपके पास, आप तो सीख रहे हो वहां पे। आप देखिए, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल को मौका मिलता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट बनने का भी, एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल को मौका मिलता है कि वो प्रोसेस कंडक्ट कराए, उसके पास इतने पावर होते हैं कि वो ही कैन एक्सेप्ट द क्लेम, ही कैन रिजेक्ट द क्लेम। अरे इतना बड़ा पावर है आपके पास कि सीओसी कौन से प्रोफेशनल्स की, कौन से क्रेडिटर्स की कंसीडर होगी, आप रिजेक्ट कर दिया किसी क्लेम अच्छे से, दैट फेलो विल नॉट बी पार्ट ऑफ सीओसी। आपके पास कितनी पावर है, प्रोफेशनल्स के पास इतनी पावर है। आई थिंक द मोस्ट पावरफुल प्रोफेशनल in our country is the insurance. He's a manager, he's a CEO, he complies all the requirements of Companies Act. He's an administrator also for RBI. He conducts the process. तो फेल हो गया कोई बात नहीं, गोइंग कंसर्न में आ जाएगी, लिक्विडेशन में कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट आ जाएंगे, आप बने रहते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, देन बिकम लिक्विडेटर। आप कहीं नहीं जाते हैं अनलेस यू फेल इन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट कहूं मैं आपसे, या आप अपनी नियत में, जैसे मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नियत सही हो। अब ये भी कोड ऑफ कंडक्ट है जो सब पे लागू होता है, नागरिक पे, प्रोफेशनल से भी लागू होता है, ये सभी पे लागू होता है। तो आप ये देखेंगे कि एक प्रोफेशनल जिसको इतनी पावर दे दी गई है, क्या ये पावर का मिसयूज नहीं होगा यदि कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करें? Who will trust you? You are trustee also in case of bankruptcy process. Even then also you are trustee. You appoint authorized representatives and you act as authorized representative. इतने सारे लोगों को होमवास के authorized representative करते हैं, लोग आप पे विश्वास करती है। इतना बड़ा साम्राज्य किसी कंपनी का एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल के हाथों में दे दिया जाता है, तो ये नहीं है, इसको आप लीजिए, इट्स अ नेशनल ड्यूटी, नेशनल सर्विस, क्योंकि कंपनी किसी और की थी, आपको दे दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको कानून के द्वारा, आईबीए के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इस योग्य समझा है कि आप यहाँ गड़बड़ी नहीं करेंगे जो पहले की गई थी। इसी कोड ऑफ कंडक्ट को प्रोसेस में जानू मैं, तो आप ये देखेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट क्यों होते हैं, क्यों हम 29A लाए, 29A क्यों लाया? अ पर्सन शुड कम विद क्लीन हैंड्स, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और ये प्रिंसिपल तो हमारे मनुस्मृति पहले से लिखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि सभी चांसलर कोर्ट्स ने इसको रीड आउट किया कि पर्सन शुड कम विद क्लीन हैंड्स। इसी क्लीन हैंड्स के कारण तो 29A लाया गया था। ये 29A क्या है? क्लीन हैंड्स के लिए। जब 29A क्लीन हैंड्स के लिए प्रमोटेड डायरेक्टर में अप्लाई होता है, तो आप सोचिए कि यू आर ए प्रोफेशनल, यू हैव टू एस्टैब्लिश द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, you have to establish the credibility of the profession also. और आप अपने फेलो सिटीजन्स को अफेक्ट करते हैं। जब भी कोई डॉक्टर यदि गुर्दा दान या गुर्दों को बेचता है या कुछ मिसयूज करता है हॉस्पिटल में, सारे डॉक्टर्स बदनाम हो जाते हैं कि भाई पता नहीं क्या करेगा डॉक्टर, अंदर जाके हमारे गुर्दे तो नहीं निकाल लेगा। एक प्रोफेशनल पूरे एज ए प्रोफेशन को
फेम भी ला सकता है, डिसरेप्यूट भी कर सकता है। तो आपको अपने फेलो प्रोफेशनल्स का भी ध्यान रखना है और आपको अपने स्वयं का भी ध्यान रखना है। और जब आप कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं तो जो भी लोग एसोसिएटेड होते हैं, चाहे आपकी वो सपोर्ट सर्विसिंग एजेंसी, चाहे वो आईपी हो, वो भी तो फॉलो करेगी। वो जो श्रेष्ठ पुरुष है, गीता में कहा है कि ये ऐसा व्यक्ति जो कर्म विकर्म देखता है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, वो बुद्धिमान है, वो योगी है, वो सब कर्मों को कर सकता है। कि भगवान ने कहा है कि ऐसा व्यक्ति सब कर्मों को कर सकता है। और आप सब कर्म कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं, कंडक्ट भी कर रहे हैं, लिक्विडेट भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जो कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, यू हैव टू चार्ज योर फी रीजनेबली। आप किसी अनडू इन्फ्लुएंस से गिफ्ट नहीं हो, आप किसी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करें। मैं आपको क्या बताऊं, आप सब लोग प्रोफेशनल्स हैं और कुछ मुट्ठी भर छोटी छोटी बातें जरूर फर्स्ट शेड्यूल में कह दी गई है, और दोज आर नॉट सफिशिएंट, दोज आर नॉट सफिशिएंट एट ऑल। क्योंकि इन द कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, कानून हो या अन्य चीज, हमेशा उसका इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्स्ट में होगा, संदर्भ में होता। उस संदर्भ में व्हाट प्रॉपर्टी डिमांड्स, इवन इफ इट इज नॉट कोडिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, पर अभी प्रॉपर्टी क्या डिमांड करती है, आप उसे करिए ना। क्या उसको लॉ, जिसे हम कहते हैं प्रूडेंट पर्सन कौन है भाई, राइट और रॉन्ग जानता है। हम कहेंगे अच्छा व्यक्ति कौन है, जो पाप पुण्य का भेद करे, वही पंडित। तो इसी प्रकार से प्रोफेशनल्स को देखना होगा, व्हाट इज प्रॉपर, व्हाट इज इम्प्रॉपर, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई ought टू डू इट, व्हाई आई शुड नॉट डू इट। तो इसमें ought टू डू इट और नॉट टू डू इट, आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए कि ये नहीं कर सकता हूं मैं। सेकेंडली, जो हमारी इंडस्ट्री है वो क्लासिफिकेशन 26 करा है एमसीए ने। देयर आर 26 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, दे हैव क्लासिफाइड कि 26 तरह की इंडस्ट्रीज है। पर मैं कहती हूँ कि स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री है, वहां पे सर्विस सेक्टर में डिफरेंट कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। जरूर नहीं कि आप वही कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ फॉलो करें, मे बी, बट देयर आर सर्टन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट which are laid down in the first schedule, but you have to evolve best practices। और ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप इस 75वां साल मना रहे हैं हम लोग, मैं कहती हूँ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कुछ कमाल करके दिखाएं कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट दूसरी दुनिया, दूसरे लोग, दूसरे इंसॉल्वेंसी रेजिम, दूसरे जुरिस्डिक्शन के, वो कहे कि नहीं नहीं कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया वाली लॉ में अच्छा लिखा है, उसको अपन कॉपी करते हैं। हम हर क्षेत्र में यदि ये रखेंगे तो इंडिया को हम सच में शीर्ष स्थान में पहुंचा सकते हैं। और इस एज में द era of knowledge economy, era of technology and era of professionals, if we infuse them together, अब प्रोफेशनल्स की जिम्मेदारी है। अब ट्रेडर्स ने हमारे देश में बहुत सारे, इंडस्ट्री सेक्टर ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगा दी है, प्रोफेशनल्स उसका बेंचमार्क तय करते हैं। और बेंचमार्क तय करने के लिए हमारे पास कौन सी रेटिंग एजेंसीज है आजकल, रेटिंग एजेंसीज है। आप सोचिए कि आप ठीक है कि नहीं है, आपका सिविल स्कोर है कि ठीक नहीं है। मैं सोचती हूँ जितने प्रोफेशनल्स हैं इसमें, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स यदि अपना रेटिंग एजेंसीज में यदि हम कोई अम्ब्रेला एजेंसी बन जाए जो सभी रेगुलेटर्स के प्रोफेशनल्स को देखे कि कहाँ कौन सा ठीक है, तो आई शुड फाइंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स at the top, number 1 in the country, number 1 in the world. Why we should think of country number 1 in the world? And then only when the border insolvency का जब provision आएंगे, certainly जो प्रोफेशनल्स यहाँ काम कर रहे हैं, मैडम ममता बिनानी यहाँ पर है, आई थिंक फर्स्ट केस इन्होंने किया था, एंड शी लेड डाउन, मतलब देखिए ना उनका जो केस है बहुत विलक्षण था, but despite the hardships, challenges, she stood like a rock. And still she is there in this profession. Otherwise दूसरा कोई टूट जाता। I know the initiatives, पर वो बराबर बनी रही। क्यों बनी रही? Because of code of conduct. I have not committed anything wrong. मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए वो निर्भय है। कोड ऑफ कंडक्ट ही हर प्रोफेशनल को निर्भयता दिलाएगा। निर्भयता, जब निर्भयता होगी, आप में निर्भयता होगी तो आप रॉक की तरह खड़े रहेंगे। आप में निर्भयता होगी तो आप कॉन्फिडेंस कमांड कर पाएंगे स्टेक होल्डर्स में और मार्केट में, आप मार्केट में अपनी जगह बना पाएंगे। फिर मैं ये नहीं कह रही कि मल्टीनेशनल्स यहाँ पर हैं, क्यों है, ऐसा नहीं कह रही है, अच्छी बात है, ग्लोबलाइजेशन में तो होता ही है और होने से ही कंपटीशन है।
और क्यों नहीं भाई, मल्टीनेशनल, व्हाई नॉट इंडियन मल्टीनेशनल्स, व्हाई नॉट इंडियन मल्टीनेशनल्स। अब झंडा हमारा है, अब झंडा इंडिया का है, लेट अस सेट द एग्जांपल। और ये कोड ऑफ कंडक्ट ही व्यक्ति को प्रतिष्ठा, पद और फेम ही दिलाता है। पैसा आप छोड़िए कि पैसा तो देखिए, वो तुलसीदास जी कहते हैं, लाभ जो हानि विधि हाथ, उसमें हम ना जाएं, क्योंकि मैंने देखा है यदि हम कहेंगे कि पैसा ही सब कुछ है। देखिए एक लेबर क्लास आदमी है और वो व्यक्ति सुबह से शाम तक 16 घंटे गड्ढा खोदता है, वो तो इतना नहीं कमा पाता। लेबर तो वो भी करता है 16 घंटे, नहीं कर पाता। तो ये तो विधि हाथ की बात है, करना चाहिए, जरूरी है। माया भी जरूरी है, ऐसा नहीं बिन माया। प्रथम सुख निरोग काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नाथ, चौथा सुख उत्तम वासा। वो हमारे कहावत चली आ रही है, छोटी छोटी कहावतों में बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है। मैं सच कहती हूँ, छोटी छोटी कहावतें में बड़ा कोड ऑफ कंडक्ट है। दे गिव गाइडेंस टू अस। मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों से हमारे इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स भी, छोटी छोटी देखिए, छोटे छोटे ना शॉर्टकट्स होते हैं, डोंट गो बाय शॉर्टकट्स। शॉर्टकट जरूरी होती है इमरजेंसी में। और यू आर हैंडलिंग अ कंपनी जिसको रिवाइव करना जरूरी है। मैं हमेशा उदाहरण देती हूँ, वो कंपनी जिसमें जो आईसीयू में है, जिसका ऑपरेशन थिएटर में काम चल रहा है, टाइम इज लिमिटेड फॉर अ सर्जन टू ऑपरेट इट। वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट रखना पड़ेगा, आपको टाइम लाइन्स भी देखनी पड़ेगी, आपको इंस्ट्रूमेंट्स आपके ठीक ठाक है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, भी देखना पड़ेगा। आपका एनेस्थेसिया वाला व्यक्ति और दूसरे कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी, डॉक्टर भी ठीक ठाक है, नर्सेस भी ठीक है कि नहीं। आपको अपने टूल्स और इक्विपमेंट्स ठीक ठाक रखने पड़ेंगे। और यही गुजारिश है कि जो आप एसोसिएट करें लोगों को अपने साथ, चाहे वो वैल्यूअर्स हो, चाहे सपोर्ट सर्विस एजेंसीज हो, चाहे और कुछ सपोर्ट आपको लेना है, प्रोफेशनल एंगेज करने हैं, आप ये देखें कि यू कैन एंगेज एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल फॉर कंप्लीटिंग दिस जॉब। तो आप देखें क्या वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है या नहीं, पीछे दगा तो नहीं दे जाएगा, दूसरी पार्टी से हाथ तो नहीं मिला लेगा, प्रमोटर से हाथ तो नहीं मिला लेगा। कुछ ऐसा भी हुआ है कि प्रमोटर से हाथ मिला लेते हैं, दैट्स नॉट अ गुड कोड ऑफ कंडक्ट। प्रमोटर से हाथ मिलाना ये पर्सनल बात अलग है, पर प्रोसेस में आप यदि प्रमोटर से वहां तक जानकारी लेना है, उससे जानकारी लेना है, उससे आपको कॉपरेशन लेना है, टू दैट एक्सटेंट जस्टिफाइड। बट आपको कोर्ट ने अपॉइंट किया है कि 29 ए के कारण वापस ले नहीं पाएगा, आपको इसको ठीक करना है। तो जब तक आप न्यूट्रल भाव से, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के, बिना किसी एक्सटर्नल कंसिडरेशन के जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक न तो आप सफल हो पाएंगे, ना सफलता सामने वालों को दिला पाएंगे। So you want to have more work, you want to earn prestige, अरे ऐसे बनिए आप, दूसरे प्रोफेशनल्स आपके यहाँ एक आप चलते फिरते इंस्टीट्यूशन बन जाए। प्रोफेशनल्स आर नथिंग बट चलते फिरते इंस्टीट्यूशन होते हैं, एंड then only you will be able to strengthen other parts of the ecosystem, because you are a bridge between NCLT and the stakeholders of the CD and IBBMS. तो तभी हो पाएंगे जब आप अपना कर्तव्य कर्म समय पे करते रहेंगे, और जिस तरीके से, जिस मैनर से बताया गया, you have to follow the manner specified in the regulations, you have to follow the directory timelines, though the timelines are directory but they are meant to facilitate your plan, your schedule, how to go about. It doesn't mean that कि वो डायरेक्टरी है तो हम नहीं पालन करेंगे, और डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है तो इसलिए मैं क्यों पालन करूं, ये भी मत करिए, क्योंकि वो आप ही के लिए बनाया गया है। क्लैरिफिकेशन हमने टाइम पे इश्यू किए हैं, पर फिर भी हम इस देश को यदि आगे लेना चाहता है तो दो कोड ऑफ कंडक्ट है। फर्स्ट यू हैव टू ओन द कंट्री, फर्स्ट यू हैव टू ओन दैट सिटी आल्सो, इट्स माय सिटी। आप 6 महीने सोचिए, मेरा घर है, मेरी सिटी है, कि मेरी सिटी होती तो मैं क्या करता। और आखिर में मैं अंत करूंगी हमारे गांधी जी के एक वाक्य से, जिसमें एक छोटे से वाक्य में पूरा ह्यूमन राइट्स जूरिस्प्रूडेंस रखा हुआ है। You have to be first human, you have to be first citizen, then you have to be professional. और गांधी जी का वो वाक्य है,
वैष्णव जानते थे कही है जो पीर पराई जानी। यदि आप दूसरे की पीड़ा खुद महसूस कर लेंगे तो आप गलत वाणी से नहीं बोलेंगे, आप गलत कार्य नहीं करेंगे, आप सबको हेल्प करेंगे। ये पूरा ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस जिसके लिए हम 93 में हमारा एक्ट बना है, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इतना बड़ा एक्ट बन गया है, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया भाई, क्या कहना है। फिर बाद में हमारा ह्यूमन राइट्स एक्ट बन गया क्योंकि इंडिया बीइंग अ पार्टी रेटिफाइड दैट, वो कन्वेंशन को रेटिफाई किया, तो नेचुरली हमको भी कुछ करना ही था। ये नहीं पता था कि वैष्णव जनते थे कही है जो पीर पराई जानी रहे। इसे पूरा ये समुद्र है ह्यूमन राइट्स का, इस ह्यूमन राइट्स का समुद्र है ये पूरा वाक्य है। इसके बाद इसको यदि हम चरितार्थ कर रहे हैं तो फिर तो शायद मुझे लगता है कि सारा कोड ऑफ कंडक्ट इसमें समाहित है, इवन ऑफ प्रोफेशनल कि आप पीड़ा समझे हो सीडी की। एक सीडी है, सीडी क्या है, यूसी पर्सन नाम है, प्रॉपर्टी है, बोल नहीं सकती, बोलती है प्रोमोटर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स द्वारा। यू आर एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑफ सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप बताइए, एक सीडी है जो बोल नहीं सकती क्योंकि वो सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बोलने वाले डायरेक्टर्स भी चले गए। नाम तो है, प्रॉपर्टी भी है, समस्या भी है, और उस जिसे बोलते हैं ना कि गाय और अपना महिला को नहीं मारना चाहिए, मूक प्राणी को नहीं मारना चाहिए, ये सीडी मूक ही है। इस मूक सीडी को आप ज्यादा मत मारिए, इस मूक सीडी को नर्चर करिए, गोइंग सा बनाइए अपने कंडक्ट से और सौंप दीजिए सही हाथों में, ताकि देश की इकोनॉमी बढ़े। जब आप सही हाथों में सौंपेंगे, 29A से डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ हुआ जो भी रिजर्वेशन एप्लीकेशन सौंपेंगे, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। और हम यदि प्रोसेस कंडक्ट करते समय दो बातों का ध्यान रखना है, हम देश के नागरिक हैं और ये जो कंपनी है हमारी, ये सही हाथों में जाएगी तभी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, तभी देश का झंडा ऊंचा रहेगा। तो आई थिंक नो प्रोफेशनल विल कमिट एनी रॉन्ग एवर, चाहे उसे कितनी हार्डशिप हो, चाहे वो सोचेगा केस छोड़ देता, मेरे को नहीं करना, पर मैं ये काम नहीं कर सकता। हम कहते हैं ना एक बाजार की धारा होती है, नहीं नहीं नहीं, कोई डॉक्टर ये काम कर ही नहीं सकता साहब, हमें पूरा विश्वास है, डंके की चोट पर कह सकता हूँ वो आदमी ये काम नहीं कर सकता। कैसे कहते हैं हम, उसने अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, उसने प्रैक्टिस के जरिए चरितार्थ किया है, आचरण के जरिए चरितार्थ किया है। और आचरण में वचन जाए पर, पहला आचरण मैंने बताया था आपको, जान जाए पर वचन न जाए, शायद ये तो नहीं है, पर यहाँ पर एटलीस्ट आपने यदि वचन लिया है कि आप ये करोगे, व्हाई सीओसी शुड रिप्लेस यू, सीओसी क्यों रिप्लेस करे, ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट अच्छा है। आई नो दैट कि अपॉइंटमेंट यदि ओसी करता है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, चले जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट व्हेन एफसी अपॉइंट्स यू, देन व्हाई सीओसी शुड रिप्लेस यू। ये फाइनेंशियल क्रेडिटर अपॉइंट कर रहा है, देन गेन कॉन्फिडेंस ऑफ अदर क्रेडिटर्स आल्सो, व्हाई देयर इज रिप्लेसमेंट देन। छोटे समय में इतने लोगों को रिप्लेस करेंगे तो प्रोसेस भी पूरा नहीं होता है और आखिर लिक्विडेशन ही हो जाता है उसका। तो जो एक ऑब्जेक्टिव हमारा है रिकवरी का, और रिकवरी का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का है, इसमें इस कोड का जो मुख्य उद्देश्य है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है तो कॉन्सिक्वेंशियल है, बैलेंसिंग इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट में मैं कहूंगी आपको कि जब किसी सीडी को हम बचाते हैं तो व्हाट डू, वी सेव लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ एम्प्लॉइज, सेवरल एम्प्लॉइज। तो कानून का सबसे आखिरी निचोड़ क्या है कि रिजोल्यूशन होता है, सबकी नौकरियां बच गई हैं, एक आदमी की नौकरी के साथ में 4 व्यक्ति पलते हैं, वेंडर्स हैं, उनके परिवार हैं, सभी सुचारू रूप से चलते रहते हैं। रोजगार की समस्या जो सामने बाएं खड़ी है हमारे देश के सामने, मोदी जी सामने खड़ी है, गाँव सरकार, केंद्र सरकार के सामने खड़ी है, नेचुरली उसमें हम यदि रिजोल्यूशन करते हैं हमारे कोड ऑफ कंडक्ट से, नेचुरली तो जिसे बोलते हैं कंक्लूसिव इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट, हर कानून का क्या इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट के टर्म्स में देखा जाना चाहिए कि कानून कितना सक्सेसफुल। और जैसे मैंने कहा कि यदि वर्ल्ड बैंक भी यदि राइडर लेती है तो हमें 2 राइडर क्यों, तीसरा राइडर ईज ऑफ लिविंग, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, क्या ऐसा इनका जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल का या प्रोसेस है जो इंश्योरेंस का, क्या उससे कितने लोगों का
लाइवलीहुड बचा, एम्प्लॉयमेंट बचा, ईज ऑफ लिविंग हुआ। एंड प्रोफेशनल्स are meant under this code for the purpose, not only for the purpose of ease of doing business, but for the purpose of ease of living. ये आखिरी उद्देश्य है, ease of living. पहले हमारे देश में था फंडामेंटल राइट्स की चर्चा हुई बहुत, क्योंकि हम आजादी के पहले गुलाम थे, राइट्स नहीं थे, फंडामेंटल राइट्स। फिर वेलफेयर की स्कीम की चर्चा हुई, हरित क्रांति आई, फिर ह्यूमन राइट्स की चर्चा हुई, क्योंकि बहुत सारे जगह टॉर्चर हुए तो ह्यूमन राइट्स की चर्चा होनी शुरू गई, टॉर्चर हुआ खासकर प्रिजन में, ह्यूमन राइट्स की चर्चा हुई। फिर उसके बाद में हमने देखा कि लिबरलाइज इकोनॉमी की चर्चा हुई, कंपटीशन की चर्चा हुई। अभी है ईज ऑफ लिविंग, दैट इंक्लूड्स हेल्थ आल्सो, दैट इंक्लूड्स प्रोफेशनल अचीविंग प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी। सो ईज ऑफ लिविंग से मैंने कहा था कि प्रोप्राइटी इंक्लूड्स नंबर ऑफ थिंग्स, सिमिलरली ईज ऑफ लिविंग includes public interest also, आयुष्मान भारत also, हमारा जो इकोनॉमी वाला है कि सबको मिलना चाहिए, सभी जस्टिस के कई डायमेंशंस ईज ऑफ लिविंग में इंक्लूडेड है। आई थिंक ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुड लीड टू ईज ऑफ लिविंग। शायद भविष्य में मैं ममता जी से कहूंगी एक वेबिनार इस पे भी कराइए, ताकि हम एक्सपर्ट्स की व्यूज सुन सके कि आखिरी कल्मिनेशन इसमें होगा, ईज ऑफ लिविंग में तो होगा। Yes, ma'am. ठीक है। सो विद दीज वर्ड्स आई थैंक एवरीबॉडी। मैं सभी भाई बहनों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ जो आज यहाँ पर जो भी मेरे टूटे फूटे शब्दों को सुन रहे हैं। और आई मीन मुझे बहुत किताबी ज्ञान नहीं है और न ही बहुत अनुभव है, बट मेरी अंतरात्मा ऐसे कहती है कि हम अपने सही नागरिकता का कर्तव्य निर्वहन करें। शायद देश को हम जो गति ये दे रहा है ना, हमारा गतिवान, हमारा इंसॉल्वेंसी कोड, शायद उसकी गति दुगनी हो जाएगी, देश की इकोनॉमी गति दुगनी। With these words, I thank everybody. Thank you so much, Mukulita ma'am. I think words and feelings both will fall short to really thank you, your magnanimity to come here, and secondly, to really guide us, not through some papers that we have been reading over the past 4 or 5 years, but you have guided us with most established facts and spiritual learnings, which has withheld, I think, if I may say, people have assailed them many times, tried to really push and pull them, but it has withstood all the pressures of time and waves. I think from that, the learnings that you have brought it us before us, it's amazing. I think we are actually left spellbound, if I may say so. Thank you so much, ma'am. Deeply touched and deeply gratified. आपने जो 2 बात कही, सारी बातें हमारे जहन में रहेगी, पर जो 2 बातें मैं सुन रही थी, एक है टचस्टोन ऑफ प्रोप्राइटी। ये हम सबको सच में इम्बाइब करना ही रहेगा। हम कई बार रिलेटेड पार्टी और रिलेटिव को हम एकदम सैक्रोसैंक्ट पढ़ते हैं। अगर वहां पे रिलेटिव लिखा है तो हम उसको रिलेटिव ही पढ़ते हैं, पर उसको मैंने जब भी पढ़ा है उसको एंड रिलेटेड पार्टी ही पढ़ा है, क्योंकि मैं ये बोलना चाहती हूँ सबको कि लॉ बोलना क्या चाह रहा है ये समझो, जो कि अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट में इस बार एकदम बखूबी निकल के आ रहा है कि परसेप्शन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। आपकी पब्लिक आपको कैसे परसीव कर रही है वो उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कि लेटर ऑफ लॉ है। स्पिरिट ऑफ कोड इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो एक उदाहरण मैंने आपको दिया रिलेटेड पार्टी और रिलेटिव का। उसी तरह से मैम जो आपने बताया कि बहुत सारी चीजें कोड में लिखी हैं, फॉर एग्जांपल आज 19(2) की एप्लीकेशन है कि कहा जाता है कि भाई एक दिन भी आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है डायरेक्टर्स का तो आप जाके 19(2) की एप्लीकेशन लगा दीजिए। ऑनरेबल NCLT, IBBI ये कहते हैं कि बिकॉज दिस कोड इज ऑल अबाउट एसेंस ऑफ टाइम, तो कहा गया है कि एक भी दिन हमें देरी नहीं करना चाहिए। और सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से कहा गया कि अगर हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो 19(2) की एप्लीकेशन इमीडिएटली लगाओ। बट हम प्रोफेशनल्स कई बार ऐसा सोचने लग गए कि हम ट्राई ही ना करें। हम 1-2 बार नॉक किए हैं, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है
तो लेट अस यूज द एमिनेशन ऑफ 19(2). हम ये कई बार भूल जाते हैं कि 19(2) लगाने के बाद हमें 2-3 महीने लग जाते हैं उसका रिजल्ट निकालने में। तो क्या उस वक्त हम कुछ ना करें क्योंकि मैटर सब्जुडाइज पड़ा है तो हम कुछ ना करेंगे? ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रोप्राइटी डिमांड्स कि हम उस वक्त भी हम पूरा ट्राई करते रहे, हम उनसे बात करें, उन्हें समझाएं कि इट इज नॉट अ कोड विच इज डेट्रीमेंटल, इट इज समथिंग विच इज ट्राइंग टू पुट यू बैक ऑन योर फीट। तो आपने जो बातें कही मैं उसको कोड से रिलेट कर रही थी, आपकी एक एक बात उस कोड के एकदम खरे उतर रही थी मैम। आई मीन ग्रेटफुल दैट यू नो, जिस तरह से मैम आप कुछ बोल रहे थे। मैं कह रही थी 19(2) की एप्लीकेशन जो आप कह रहे हैं उसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ कि इसको लगाना जरूर नहीं है, और नहीं लगाया तो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है, क्योंकि इफ यू आर एबल टू यू अडॉप्ट अ स्ट्रेटेजी जिसके तहत धीरे धीरे आप उससे उगलवा रहे हैं, कुछ निकलवा रहे हैं, जस्ट वेट, लगा दीजिए। पर लगाने के बाद में वो कोऑपरेट नहीं करता है, वो कहता है अच्छा जी कोर्ट में गए ना वहीं निपटेंगे। इससे बेटर है कि आउट ऑफ द कोर्ट, द होल प्रोसेस इज आउट ऑफ कोर्ट, सो व्हाई डोंट यू डेवलप बेस्ट प्रैक्टिसेस आउट ऑफ कोर्ट। जो कुछ रह गया है उसको बेस्ट प्रैक्टिस से आप कर रहे हैं, और बेस्ट प्रैक्टिस में हमेशा एक चीज है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स अ लॉट। यस व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? राइट मैम, एब्सोल्युटली मैम, राइट मैम। मैं आज तक 19(2) की एप्लीकेशन नहीं लगाई क्योंकि मुझे यही लगा कि आई कैन सॉल्व इट बेस्ट। और मुझे लगता है एनसीएलटी हमें तभी जाना चाहिए जब एकदम हम हाथ पैर अपने सारे मार के देख चुके हैं, उसके बाद हमें जाना है, पर टाइम को ध्यान में रखते हुए। अभी मैम हम बहुत देख रहे हैं कि एनसीएलटी इज फ्लडेड विद द थिंग दैट वी शुड बी डूइंग। We go to NCLT for seeking directions of the Honorable Adjudicating Authority, whereas we should not be doing that because court has empowered us a lot. Court has given us empowerment. So I think आपके ये session से हम बहुत learnings लेकर जा रहे हैं मैम, and believe you us that today the numbers will not matter because Facebook में live है and this recording will also go live to everybody. I'm sure a lot of us will learn many things out of this. मैम एक चीज आप खाली हमें guide कर दीजिए that this is an ethical and a regulatory framework. So we understand that the code of conduct is mandatory because it forms a part of the IBBI insolvency professional regulations. अभी जो handbook है, is what is the, I mean I wanted to understand कि legal framework इसका क्या है मैम? This is binding on the IP or it is for guidance of the IP? It is for the guidance of the IP. अच्छा, क्योंकि बाइंडिंग तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर देश में दो चीजें बाइंडिंग है, हमारे देश में दो चीजें बाइंडिंग, एक तो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। देश में दो ही चीजें बाइंडिंग है। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स में कोड आता है, उसके रेगुलेशन आते हैं, बाइंडिंग। बाकी जो कुछ होता है डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी, वो गाइडेंस है आपका। और ये मैं कहूँ कि यदि जब भी कभी इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट होता है, कन्वेंशन होते हैं, तो व्हाई डू वी गिव इफेक्ट इन आवर म्युनिसिपल लॉ? बिकॉज दैट इज नॉट बाइंडिंग, that is not binding. Government of India has ratified, but to make it binding in the country, we have to enact laws to give effect to that. We have to customize that thing, fine, as per our requirement, but we have to give effect to in our laws. So only two things are binding in our country: statutory instruments and the judicial precedents, if not overruled. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. I will not take much time of anyone, but I must tell you that in this code, I was reading the books of ethics. I just could not, ma'am, I could not pull my eyes out. जब मैं पढ़ना शुरू करी तो I was like intrigued to finish it. मैंने एक चीज बहुत अच्छी देखी जो मैं नोट करके रखी हूँ, which I want to tell all of you, that यहाँ पे कहा गया है, any professional rendering a service in this ecosystem should consider himself as an ambassador of the ecosystem as a whole and perform his duties towards his respective clients, being mindful of his larger responsibility. Yes. So this is beautiful. I mean, अगर एक legal कोई suppose हम लोग कई बार जैसे legal counsel है कोई केस में, तो हम क्या बोलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि क्लाइंट आके मुझसे पूछे कि मुझे क्या करना है, तब मैं बताऊंगा कि इस प्रोसेस में आपको क्या करना है। पर आपके इस एक लाइन से, सेंटेंस से ये समझा गया कि यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आप खुद बताइए कि इस प्रोसेस में आपको आगे चल के क्या करनी चाहिए। अगर आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है तो वो ना पूछे, लेकिन आप उनको बताइए कि ये आप कोर्ट के तहत सही नहीं कर रहे हैं।
I think immense responsibility that has been casted on every stakeholder who is in the ecosystem. Even you can guide COC. How? Yes. When COC replaces any professional, then you should point out that this is the code of conduct, or this way he has not behaved, or he has not behaved properly, or impropriety पे जो भी हो रहा है आप पता है ना, तो COC भी अपने जब रिप्लेसमेंट करेगी तो एटलीस्ट दे विल साइट रीजंस फॉर डूइंग सो. Correct. Yes, ma'am. They will set reasons for doing so. तो COC के लिए भी आपका code of conduct will be illustration for them, for the COC members also. Yes. I think the session has been really. No, ममता, Please, ममता, please. ममता, अभी तुम्हारे पास टाइम है. मेरे को कुछ बोलने दो, और बीच में मेरे को कुछ बोलने दो, और बीच में मैं मैडम से कुछ बोलना चाहता हूँ, और बीच में मेरे को शॉर्टकट मत करना. मैं बहुत भावुक हो गया हूँ. बोलिए ना प्लीज गुप्ता जी. अच्छा मैडम जी सुनिए, मैं अभी एनसीएलटी कोलकाता बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद को कुछ समय के लिए हटा के मैं सावरमल गुप्ता की हैसियत से पर्सनली आपको एड्रेस कर रहा हूँ. तो अगर मैं आपको एक बच्चे की तरह एड्रेस करूं, क्योंकि अभी तक आपने जो हिंदी में भाषण दिया और जो इनफॉर्मल तरीके से भाषण दिया, मैं बहुत भावुक हो गया हूं. और आदमी आजकल अंग्रेजी बोलना फैशन समझने लग गए हैं. हम तो राजस्थान में, अरे मारवाड़ी भी, रिलेटिव भाई भी अंग्रेजी में बात करते हैं. हाउ आर यू? तो मैं बोले अरे यार तेरा छोटो भाई है, इन्हें तू हाउ आर यू क्या बोला, बोल के भाई क्या हाल है. तो हम राजस्थान में क्लास 10 तक हिंदी में पढ़े हुए हैं, हिंदी प्रेमी है. तो हिंदी बोलने की बड़ी मेरी वीकनेस है. ऐसे मैं 55 साल से कलकत्ता में रहता हूँ और 2-4-5 साल उड़ीसा में बिताया है. तो बंगला बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ. उड़िया बहुत अच्छी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ. लेकिन मेरी कमजोरी है मारवाड़ी बोलना, कि घर में भी मारवाड़ी बोलूं और हिंदी बोलूं. तो क्या मारवाड़ी बोलिए, जी मारवाड़ी बोलिए. तो आप जो हिंदी में भाषण दिए और इतना इनफॉर्मल भाषण दिया, आपने मुझे भावुक बना दिया. मेरी माँ जो है, हमारे गांव में छत के ऊपर वो पीढ़ा पर बैठती थी. कुर्सियां तो गांव में थी नहीं, तो एक दीवार का पीढ़ा था, और वो प्रवचन देती थी रोज रात को, शाम को गर्मियों के टाइम पर बैठ करके, और गीता का एक अध्याय रोज सुनाती थी, और तुलसीकृत रामायण उनके पास हमेशा रहती थी. तो हम सारे बच्चे, हमारी हवेली में कम से कम 50 बच्चे थे, और सारी लेडीज और सारे जेंट्स जो हैं, ऐसे तो जेंट्स सब प्रदेश में रहते थे, गांव में कोई जेंट्स रहता नहीं था, लेकिन फिर भी जो कोई जेंट्स रहता था वो सब बैठ जाते थे. और हमारी माँ जो है प्रवचन देती थी. एक्चुअल में हमारी हवेली में खाली हमारी माँ ही थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हुई थी, बाकी कोई भी भाई ताई चाची और कोई पढ़ी लिखी नहीं थी. तो वो एक गीता का अध्याय, और जब अंधेरा हो जाता था तो चिमनी लालटेन में पढ़ते थे. हमारे गांव में जब तक मैंने क्लास 10 पास करके कलकत्ता में आया, तब तक बिजली नहीं थी. तो वो जो तरीका से सत्संग कराती थी या जो प्रवचन देती थी, आज मैं आपको अपने माँ का रूप आप में देख रहा था. आप वही गीता और वही रामचरितमानस का और वही तुलसीदास जी का और वही सारी चीज आप ऐसे लपेट करके बताया आपने, कि आपने पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस और आईबीसी कोड का पूरा एथिक्स और पूरा कोड ऑफ कंडक्ट उसमें ऐसा लपेट दिया कि जिसमें और कुछ, मैं आपका एकदम स्टूडेंट बन गया हूं. मैं अभी तो फॉर्मल मीटिंग में बेटा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन मैं आपका स्टूडेंट बन गया हूं. और अब मुझे एक बहुत बड़ा विश्वास हो गया है कि सरकार में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास दिल, दिमाग और आत्मा और संवेदनशीलता है, कि अगर कल हमारी को कोई तकलीफ आए और हमारी नीयत साफ है, और उसके बाद भी ये कानून वाले चारों तरफ से जकड़ देते हैं, तो हमको न्याय मिलेगा. अगर हमारी नीयत साफ है और हमारे संस्कार ठीक है, और अगर हमारे माता पिता ने जो कुछ सिखाया है कि सच्चा बोलो और पूरा तोलो, उसको अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं तो. लेकिन कभी क्या होता है कि ये कानून के दाव पेच में फंस करके आदमी परेशान हो जाता है. तो अब हमको विश्वास हो गया है
कि हमारी आवाज वहां सुनी जाएगी। संवेदनशील लोग हैं वहां भी, सच्चे लोग हैं वहां भी, और सच्चाई को पहचानेंगे वो लोग भी। और मैं क्या बताऊं, इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। ममता की जो आपने बात बोली, मैंने देखा है एक लड़की होके कैसे उसने कलकत्ता टू हैदराबाद कितना